मैं सिर्फ इन्ना पूछना चाहांगी कि जिहड़ा ये बजट पेश कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। कि जब कोई लड़ाई होती है पंजाब सब तो बाद नुकसान पंजाब का। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर पंजाब का तो ट्रेड बंद हो गया, लेकिन गुजरात से महाराष्ट्र से सी रूट से ट्रेड चलते रहता है। क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है लेकिन करतारपुर साहब का कॉरिडोर नहीं खोला जाता। तो ये हर बारी पंजाब के साथ क्यों, जिस करके पंजाब का किसान, पंजाब का ट्रेडर, पंजाब की इंडस्ट्री सफर कर रही है। हमारे किसानों को क्या किया सी कि थोड़ी MSP लाजमी की जाऊगी, लीगल गारंटी बनाई जाऊगी, स्वामीनाथन कमीशन नो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 60% ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਸਿਸ 'ਚ ਚਲੇ। 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ। ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ कि सारी पंजाब की इंडस्ट्री छड़ के बाहर भजी जा रही है। आपने ना हमें कोई लेदर इंडस्ट्री के लिए कुछ दिया, ना स्पोर्ट्स गुड के लिए दिया, ना कोई टेक्सटाइल, कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं, टूरिज्म सर्किट पे कुछ नहीं। कम से कम हमारा जो डेट है उसको कर्जा माफ कर दीजिए। फ्लड रिलीफ फार्मर्स को उनका बनता हुआ उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए। इंडस्ट्रियल पैकेज कोई दे दीजिए, हमारी इंडस्ट्री बच जाए। ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सपोर्ट दे दीजिए। और हमारा जो MSP किसानों को जो गारंटी किया था पंजाब को बचा लीजिए। ये वो बॉर्डर है जो देश को बचाता है, देश का पेट भरता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ता है और इस देश की लड़ाई के लिए सबसे पहले पंजाब होता है। गुरु रविदास जी, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे। एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਯੰਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਜਟ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। लेकिन मैडम मैनू हैरानी इस गल दी है that although the honorable minister says that her government sankalp is to focus on the poor, underprivileged and disadvantaged, and to deliver this she is inspired by 3 kartavyas. First, to accelerate and sustain economic growth. Second, to fulfill the aspirations of people, and third, to ensure sabka saath sabka vikas, so that every community, every region has access to resources and opportunities for meaningful participation. मैडम मैं सिर्फ इन्ना पूछना चाहांगी कि जिहड़ा ये बजट पेश कीता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, मैं कह सकती हाँ कि 2015 तो बाद इस सरकार ने किसी बजट ने पंजाब नूं उस बंदे हुए हिस्से विचों दवानी नहीं दिती, एक विकास का कार्य करके नहीं दिता। इस तो होर शर्मनाक की गल हो सकती है that you speak of something सबका साथ and then you neglect। आपकी रिफॉर्म्स एक्सप्रेस तो लगता है पंजाब तक पहुंचती है, उधर कोई स्टॉप ही नहीं है। पंजाब is not even a part of this country. Every year we get over 2,000 crores in taxes to the central pool. Yet when it comes to getting something, I'm sorry to say, there is nothing. That is why the inequality report of 2026 says inequality in India is among the highest in the world, showing very little improvement. And this, I think, says everything about your sabka saath. Madam, my state Punjab च सब तो वध ऐसी population हैगी 32%। इन्हां तो होर गरीब कौन हो सकता है। लेकिन पंजाब की ग्रोथ रेट ये साडी पंजाब की सरकार आम आदमी सरकार
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗਰੋਥ 6.8% ਜਾਂ 7.2, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6.2 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 6% 'ਚ ਆ ਗਈ। The debt to GSDP ratio is at 47% and ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਡਮ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਕਬੋਨ। ਮਾਈ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ 1.5% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਗ੍ਰੈਨਰੀ ਆਫ ਦ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਨੇਸ਼ਨ। ਬਟ and to ensure this, madam, we have depleted our water resources. To ensure national food security, our farmers, against the black laws, they were promised the 3 farm laws। ਸਾਡੇ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MSP ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ किसानी खुदकुशियां हो रही है पंजाब च हो रही ने। पिछले 5 साल 1000 किसानों ने खुदकुशी की थी, क्योंकि हरेक किसान आज करजाई होई बैठा है। लेकिन अफसोस की गल कि पंजाब च जे तुसी किसान निधि लाओ ओदे विच 50% घाटा होया हैगा। बेनिफिशरीज हैव बीन रिड्यूस्ड by 50%। if you have reduced the subsidy on urea and on fertilizer, impacting the agrarian state of Punjab, the maximum increasing the burden। मैडम, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कभी सीड बिल और अब लेटेस्ट US ट्रेड डील, ये सारी चीजों से देश भर के किसान का नुकसान सबसे ज्यादा पंजाब जो सिर्फ किसानी पर निर्भर है। मैडम, इन द फ्लड्स, पंजाब गॉट द वर्स्ट फ्लड्स ऑफ द लास्ट डेकेड in 2025 and the sad bit is the center says there is 12,500 crore, 12,500 crore स्टेट ਦੇ ਕੋਲ डिजास्टर रिलीफ फंड ਪਿਆ ਹੈ। स्टेट की सरकार ने सारे पैसे छक गए, उड़ा गए, खा गए, कहते कोई पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी, कई मंत्री जाके उठे फ्लड टूरिज्म करके आए, 1600 करोड़ ऐलान किया। जस्ट 5 minutes more मैडम, 1600 करोड़ ऐलान किया, लेकिन उससे दवानी नहीं मिली। केंद्र दी ते सेंटर दी खिच्चा तुई च अज ताईं लोकां नूं दवानी नहीं मिली, जिथे हजारों एकड़ ਲੱਖਾਂ किसान का सारा कुछ बर्बाद हो गया। मैडम, साडी इंडस्ट्री दा ਤਾਂ ਆ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 60% ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਸਸ 'ਚ ਚਲੇ। 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ। ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੋਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। FRK ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਲਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारा अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। अटारी बॉर्डर पंजाब का तो ट्रेड बंद हो गया, लेकिन गुजरात से महाराष्ट्र से सी रूट से ट्रेड चलते रहता है। क्रिकेट मैच शुरू हो जाता है, लेकिन करतारपुर साहब का कॉरिडोर नहीं खोला जाता। तो ये हर बारी पंजाब के साथ क्यों, जिस करके पंजाब का किसान, पंजाब का ट्रेडर, पंजाब की इंडस्ट्री सफर कर रही है। और मैं आपको यही बेनती करती हूँ कि आज हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट करके आज ड्रग से पंजाब का इतना नुकसान है कि आपको हैरानी होगी। मैडम, क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म से पंजाब से रिकॉर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग ओवरडोज डेथ्स इन द कंट्री। सबसे ज्यादा हायर प्रोपोर्शन इन द कंट्री ऑफ ड्रग्स स्मगलिंग। जस्ट 2 seconds, वेरी इंपॉर्टेंट इशू मैडम। BSF की रिपोर्ट बताती है मैडम कि हर रोज 24 ड्रोन पकड़े जाते हैं। कितने नहीं पकड़े जाते हैं? पिछले साल के 11 महीनों में 270 ड्रोन पकड़े गए, जिसमें से 370 kg हेरोइन, 19 kg आइस, 14 kg ओपीएम, 200 वेपन्स, 3600 राउंड्स ऑफ एम्यूनेशन, 10 किलो RDX, 12 हैंड ग्रेनेड, ये सब पाकिस्तान रोज भेज रहा है। तो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तहस नहस हो गया। लेकिन सेंटर की असिस्टेंस फॉर नार्को कंट्रोल जो फंड होता है उसमें से पंजाब को नहीं दी। सर मैडम, जस्ट 2 मिनट और दे दीजिए। नो कंप्लीट करिए मैडम, प्लीज डिमांड रख लेने दीजिए। तो हमारी एजुकेशन होए, हमारा हेल्थ होए। आज पंजाब में हर रोज महिला, मैडम महिला की गले कैंसर से 8 औरतें रोज पंजाब में मरती है। सो मैं आपको सिर्फ ये कहती हूँ कि आपने
ना हमें कोई लेदर इंडस्ट्री के लिए कुछ दिया, ना स्पोर्ट्स गुड के लिए दिया, ना कोई टेक्सटाइल, कोई हाई स्पीड ट्रेन नहीं, कोई कॉरिडोर नहीं, टूरिज्म सर्किट में कुछ नहीं। कम से कम हमारा जो डेट है उसको कर्जा माफ कर दीजिए। माननीय सदस्य आगा राहुल मैली जी, जस्ट 2 लाइंस, फ्लड रिलीफ फार्मर्स को उनका बनता हुआ उनको कॉम्पनसेशन दे दीजिए, इंडस्ट्रियल पैकेज कोई दे दीजिए, हमारी इंडस्ट्री बच जाए, ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए कोई सपोर्ट दे दीजिए, और हमारा जो एमएसपी किसानों को जो गारंटी किया था, पंजाब को बचा लीजिए। ये वो बॉर्डर है जो देश को बचाता है, देश का पेट भरता है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ता है, और इस देश की लड़ाई के लिए सबसे पहले पंजाब होता है। पंजाब का ये हक उनको इस बजट में से दीजिए। शुक्रिया।